good afternoon students. It's our 7th lecture on complex analysis, and now we continue with one more new topic, that is Taylor series and Laurent series. We have to see first what is Taylor series, and next we see the Laurent series. So first we see the Taylor series. Before that we have already seen that Taylor series in M1 in a successive differentiation, but here the Taylor series is regarding to analytic function. It is in the form of complex, and that Taylor series is in the form of real function. Okay, so how we define that? If f of z is an analytic function inside a circle C with a center at A, then for all z inside that circle C, how we define that function f of z in the form of series, that f of z is equals to f of a plus z minus a, f dash of a plus z minus a square by 2 factorial, f double dash of a plus z minus a whole cube upon 3 factorial, f triple dash of a plus and so on. So आप लोगों को समझ में आ गया कि टेलर सीरीज किसी फंक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं f ऑफ z के लिए, एंड f ऑफ z शुड बी एनालिटिक, एंड कंडीशन क्या है उसकी कि दैट इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल C एंड हैविंग अ सेंटर एट A. So for all z that which is lies in a circle C, so that for that how is our f of z defined, should be in this form, in the form of series, and that is called as a Taylor series. And next we comes on the Laurent series. Now what is the condition for the Laurent series for a function f of z? If f of z is an analytic function inside and on the boundary of the ring shaped region R, which is bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2. What about that R1? R1 is a greater than R2. The respectively having the center at A, then for all z which is lies in that region R. Region R कैसा है? That region R is a bounded by two concentric circle, that is C1 and C2 having the radii R1 and R2. Concentric circle, that means they have the same center. Here the center is A, and that f of z is analytic inside that region R, and as well as on the boundary of that ring shaped region R. Then for all the z which is lies inside that region R, how we define the f of z in the form of series, that f of z is equals to a0 plus a1 z minus a plus a2 z minus a square plus and so on. यहाँ सब पॉजिटिव पावर होंगे z माइनस ए के, देन प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ से निगेटिव पावर शुरू होंगे a सफिक्स माइनस वन z माइनस ए रेस टू माइनस वन प्लस a सफिक्स माइनस टू z माइनस ए रेस टू माइनस टू प्लस एंड सो ऑन. Now if you observe that there are two types of terms in a Laurent series, that means there is a positive powers of z minus a as well as negative powers. अगर ऐसे फॉर्म में सीरीज आती है आपकी, so obviously it is a Laurent series. अब अगर z minus a के सभी टर्म्स की पावर पॉजिटिव आ रहे हैं, देन इट इज अ टेलर सीरीज. ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक यहाँ पे एक हिंट है कि अगर सीरीज में आपके सभी पॉजिटिव पावर आ रहे हैं z माइनस ए के, देन इट इज अ टेलर सीरीज, और अगर z माइनस ए के पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव पावर्स आ रहे हैं, देन इट इज अ लॉरेंट सीरीज. सीरीज कैसे निकालनी है वो आपको मैं बताऊंगी प्रॉब्लम करते वक्त. तो यहाँ पे जो सफिक्स दिए है दैट इज a0 a1 a2, सो दैट इज अ डेफिनेशन हाउ वी डिफाइन दैट सफिक्स an, that means here an is a positive and that an is varies from 0 1 to up to infinity. Then a suffix minus n अगर negative रहते हैं यहाँ पे, so how we define that? So that both are in this form. Okay, so that is all about the Taylor series and Laurent series. And now we comes on the problems of the Taylor's as well as Laurent series. Now students, we comes on the problems. There is a problems I have written. Expand number first function sin z, second is a cos z. We have to expand that function in a Taylor series about the point z is equals to pi by 4. So ये तो प्रॉब्लम है टेलर सीरीज का. नेक्स्ट है एक्सपांड 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन. यहाँ पे रीजन दिया है एंड वी हैव टू एक्सपांड दैट फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. तो ये लॉरेंट सीरीज का प्रॉब्लम है. यहाँ पे रीजन जब रहता है तो जनरली इट्स कम्स इन अ लॉरेंट सीरीज अबाउट पॉइंट रहता है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ मे बी टेलर सीरीज और अ लॉरेंट सीरीज. तो सबसे पहले तो हम टेलर सीरीज देखेंगे.
सो हियर इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये हमारा फंक्शन है और इसके लिए हमें टेलर सीरीज निकाली। अब बाय द टेलर सीरीज हमें पता है कि हाउ वी कैन डिफाइन टेलर सीरीज। एक्सपांशन अगर लेना है हमको एफ ऑफ जेड का, तो अभी हमने टेलर सीरीज लिखी थी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन। ये तो है हमारी टेलर सीरीज। इट गोज टू इन्फिनिटी, इसके डेरिवेटिव आगे आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे इसके टर्म्स भी बढ़ते जाएंगे। तो हमें तो अप टू 3 टर्म्स हम निकालेंगे इस सीरीज के लिए, मतलब हमें 3 डेरिवेटिव तक हम निकालेंगे एंड आगे विल बी कंटिन्यू। सो यहाँ पे एक ही जगह क्या रहेगा हियर, जब हमने डेफिनेशन में लिखा था टेलर सीरीज के, तो ये क्या रहता है अबाउट दैट पॉइंट वी हैव टू टेक अ सीरीज, बट यहाँ पे अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 है हियर। सो टू फाइंड सीरीज about what is that point about z is equals to pi by 4, that means यहाँ पे that implies यहाँ पे a की जगह क्या है pi by 4 है और हमें जहाँ जहाँ भी a रहेगा वहाँ पे हमें pi by 4 पुट करना है। अब अगर थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो f ऑफ a एफ ऑफ पाई बाय 4 z माइनस पाई बाय 4 एफ डैश ऑफ पाई बाय 4, एफ डैश है मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और फिर जो डेरिवेटिव रहेगा एफ डैश ऑफ जेड, इन दैट एफ डैश ऑफ जेड वी हैव टू रिप्लेस जेड बाय पाई बाय 4 अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो वन बाय वन वी टेक द डेरिवेटिव। हमारा फंक्शन है हियर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है हमारा फंक्शन है साइन जेड। हमें पता है कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे दैट इज एफ डैश ऑफ जेड, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या रहेगा साइन, इसका डेरिवेटिव रहेगा कॉस जेड। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेंगे हम एफ डबल डैश ऑफ जेड, तो वो क्या हो जाएगा कॉस जेड का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन जेड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, सो दैट इज एफ ट्रिपल डैश ऑफ जेड, इट इज नथिंग बट अ साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस रहेगा, बट यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन माइनस होने की वजह यहाँ पे भी माइनस है, सो इट बिकम अ माइनस कॉस ऑफ जेड। और इस तरह से कंटिन्यू होते जाएंगे इसके डेरिवेटिव, क्योंकि हमें पता है का साइन के कॉस आता है डेरिवेटिव और कॉस का साइन आता है। सो अप टू थर्ड टर्म आई हैव टेकन दैट डेरिवेटिव। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ पे अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो सीरीज क्या होंगी हमारी वो आपको समझ में भी आया होगा। तो फॉर यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर z is equals to pi by 4, how is our series, that implies f of z is equals to यहाँ पे होगा f of z is equals to f of pi by 4 then plus z minus pi by 4 into f dash of pi by 4 plus z minus pi by 4 whole square upon 2 factorial f double dash of pi by 4 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होंगी हमारी z माइनस पाई बाय 4 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे फॉर्म में हमारी सीरीज रहेंगी फॉर दी पॉइंट z इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो हमें अब निकालने एक एक टर्म दैट इज f ऑफ पाई बाय 4, f डैश ऑफ पाई बाय 4, f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, f ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास f ऑफ z है, तो हम क्या करेंगे z को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 4 से, तो दैट गिव्स f ऑफ पाई बाय। जैसे यहाँ पे हमारे पास है f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z, तो हम रिप्लेस करते हैं f ऑफ पाई बाय 4 से, मतलब z हो गया हमारा पाई बाय 4, सो साइन ऑफ पाई बाय 4। अब सबको पता है कि साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या रहता है 1 बाय रूट 2, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 बाय रूट 2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट f डैश ऑफ z। सो अगर आप z को रिप्लेस करेंगे तो पाई बाय 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा f डैश ऑफ पाई बाय 4। एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाय 4, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4, व्हाट इज द कॉस ऑफ पाई बाय 4, दैट इज अगेन नथिंग बट 1 बाय रूट 2 हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ। नेक्स्ट डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ जेड, अगेन एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4। अब हमें पता है कि साइन पाई बाय 4 तो 1 बाय रूट 2 है, पर यहाँ पे माइनस है, सो माइनस 1 बाय रूट 2। उसके बाद आएंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ जेड,
that is a minus cos of z. So f triple dash of pi by 4 is equals to minus cos of pi by 4. Cos of pi by 4 is nothing but again 1 by root 2, but there is a minus, so minus 1 by root 2. Okay, so in this way we get all that values of that f of pi by 4, f dash of pi by 4, f double dash of pi by 4 and f triple dash of pi by 4. Suppose we give it equation number 1 to that series, and now we use all that values or put in that series 1. So how is a series implies, and therefore f of z is equals to, सबसे पहले तो f of pi by 4 की वैल्यू हम लिखेंगे. f of pi by 4 is nothing but 1 by root 2 प्लस यहाँ पे होगा हमारा z माइनस pi by 4. उसके बाद f डबल डैश ऑफ pi by 4 is nothing but again 1 by root 2 आ जाएगा हमारा. उसके बाद z माइनस pi by 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 यहाँ पे. इसके बाद f डबल डैश ऑफ pi by 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 1 by root 2, तो हम उसको लिखेंगे माइनस 1 by root 2. उसके बाद आगे आ जाते हैं हम z माइनस pi by 4 क्यूब, और यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 into 2 into 3 दैट इज 6. तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई हमारी 6, और f ट्रिपल डैश ऑफ pi by 4 इज नथिंग बट माइनस 1 by root 2. तो ये हो गया हमारा माइनस 1 by root 2 प्लस एंड सो ऑन. अब आगे भी हमें पता है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ लिया तो क्या हो जाएगा, cos z का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन माइनस साइन z. अब जब माइनस साइन z आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. अगेन आगे हम साइन z का लेंगे तो cos z का माइनस साइन z, ऐसे अल्टरनेटली वो डेरिवेटिव आते जाएंगे और हमारे वहाँ पे ये टर्म्स निकलती जाएंगी. सो इट गोज टू इन्फिनिटी. तो ऐसे फॉर्म में है. थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 by root 2 is a term which is a common in each term. So we take that term out of that series. तो यहाँ पे 1 upon यहाँ पे f of z 1 by root 2 हो गया ये हमारा. और एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो इसको. So 1 by root 2, देन यहाँ पे हो गया 1 plus z minus pi by 4, देन यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे z minus pi by 4 होल स्क्वायर अपॉन 2. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है. सो माइनस z माइनस pi by 4 रेज़ टू द पावर 3 by 6 एंड सो ऑन. यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देते हैं कंप्लीट. 1 by root 2 टर्म्स निकल जाएंगी हर एक टर्म से कॉमन. So in this way we get that series for the function f of z when your f of z is in the form of sin z. कैसे निकले आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फंक्शन था हमारा sin z, सीरीज हमारी इस फॉर्म में रहती है. यहाँ पे पॉइंट था अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू pi by 4, मतलब एक ही जगह आ जाएगा हमारा pi by 4. तो हमने सीरीज को ऐसे फॉर्म में तो लिख लिया. फिर उसके डेरिवेटिव्स लिए f of z के इन दिस फॉर्म f dash of z, f डबल डैश ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव. अब जो पॉइंट है एक ही जगह pi by 4 है, तो जहाँ जहाँ पे z था z इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे फंक्शन में z को हमने pi by 4 से रिप्लेस किया. तो यहाँ पे ऐसे वैल्यूज आ गई उसकी. ओके, एंड फाइनली वी पुट ऑल दैट वैल्यूज. तो ये हो गया हमारा टेलर सीरीज का प्रॉब्लम फॉर द फंक्शन sin z. सिमिलरली यू कैन फाइंड अगेन द टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन cos of z. जैसे हमने sin z के लिए किया है आपको वैसे ही cos z के लिए करना है. सो एक बार अच्छे से देख लो इसको, देन आई विल रब इट. Now students, we comes on another problems on that expansion of the function f of z. Here I have written expand f of z is equals to z upon z plus 1 into z plus 2 about the point z is equals to minus 2. अब यहाँ पे सिंपली हमें दिया है एक्सपांड. ना तो हमें बताया है कि एक्सपांड करो इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज और इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट सीरीज. अब जब एक्सपांड करना है तो वो सीरीज जो कुछ भी आएंगी देन ऑन दैट सीरीज डिपेंड इट इज अ लॉरेंट्स और अ टेलर सीरीज. अब कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज अनदर मेथड टू इजीली गेट द सीरीज. अब देखो सीरीज कैसे निकालते हैं. यहाँ पे पॉइंट दिया हमें z इज इक्वल टू माइनस 2. अब z इज इक्वल टू माइनस 2 है तो सीरीज कौन से पावर में आनी चाहिए, z इज इक्वल टू माइनस 2 मतलब सीरीज आनी चाहिए हमारी z प्लस 2 के फॉर्म में. जैसे हमारे पास इनिशियली जैसे हमने पहली
देखिए z इज इक्वल टू π/4 के लिए थी हमने सीरीज निकाली। अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, मतलब हमारी जो सीरीज आई थी, तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ z माइनस π/4. So we see the expansion of that function here. So how to expand about the point z is equals to -2, that means we have to expand about the power of series z plus 2. यहाँ पे अगर 2 रहता था तो सीरीज कौन सी फॉर्म में आती थी, पावर ऑफ z माइनस 2 के, यहाँ पे +2 रहता था। अगर -3 रहता तो z प्लस 3 की फॉर्म में, अगर +3 रहता तो z माइनस 3 की फॉर्म में। सो रिमेंबर दैट थिंग. So we have to expand that f of z about the point z is equals to -2, that is in the form of power of z plus 2. अब यहाँ पे कैसे करना, दैट इज अनदर मेथड. अब इस फॉर्म पावर की फॉर्म में हमें सीरीज चाहिए z प्लस 2 की, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन रखना. जिस पावर के फॉर्म में हमें सीरीज चाहिए, जिस टर्म के पावर के फॉर्म में चाहिए, उसके लिए रखना है हमें सब्स्टिट्यूशन. सो क्या करेंगे हम, वी पुट z प्लस 2 इज इक्वल्स टू t. We put z plus 2 is equals to 2t, और यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे. दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज t माइनस. अब जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में z है, वी हैव टू रिप्लेस दैट z बाय t माइनस 2. मतलब होल फंक्शन आपका t के फॉर्म में आ जाएगा और फाइनली सीरीज आपकी t के फॉर्म में आ जाएंगे, एंड देन वी रिप्लेस t by z. So finally you get the series or expansion of that function about the point z is equals to -2, that means in the form of power of z plus 2. ओके, सो देखो अब कैसे कैसे करना है हमें. सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1, हम दे देते हैं इसको. सो यूजिंग इन 1, अब इक्वेशन 1 में देखो क्या चेंजेस होंगे. f ऑफ z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा t माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे. उसके बाद z प्लस 1 है, तो z प्लस 1 दैट इज t माइनस 2 इज z प्लस 1. उसके बाद z इज अगेन t माइनस 2 प्लस 2 हो गया हमारा. अब थोड़ा चेंजेस हम आगे यहाँ पे करेंगे. देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है हमारा t माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में देखो -2 प्लस 1, सो दैट इज t माइनस 1. उसके बाद -2 प्लस 2 ये हो गया 0, तो यहाँ पे रहेगा सिंपली t रहेगा यहाँ पे. ओके, सो एक बार अच्छे से उसको देख लो. सो हाउ वी हैव चेंजेस हियर. अब ये टी हम एज इट इज ही रखेंगे यहाँ पे. सो ये टी रहेगा, ये 1/t कर देंगे हम इसको, दैट इज हमारा 1/t हो गया. ये t माइनस 2 भी हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे. ओके, अब डिनोमिनेटर में जो है t माइनस 1, सो उसको हम ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर में. अब t माइनस 1 को ट्रांसफर करते हुए एक ध्यान में रखो कि t माइनस 1 से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. तो माइनस साइन अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, हो माइनस ऑफ 1 माइनस टी, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस टी के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन है और इजीली वो एक्सपांड हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम -1/t, यहाँ पे हो जाएगा हमारा t माइनस 2. और अब ये टर्म अगर न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर -1. एक बार अच्छे से देख. ये यहाँ पे हमें माइनस साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे. t माइनस 2 को हम लिखेंगे 2 माइनस टी. यहाँ पे कंडीशन रहेंगे हमारे लिए कि हमारा t जो है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. क्योंकि अगर t 0 के बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया वहाँ पे, इट गोज टू वैल्यू गोज टू इन्फिनिटी. मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या रहेंगी, 0 इज लेस देन t. What t will take here, because t is a positive negative for both the condition is less than 1. यहाँ पे t कैसा होना चाहिए, should be greater than 0 and it should be less than 1, क्योंकि यहाँ पे टर्म आती है हमारी 1 माइनस टी. अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये पॉजिटिव टर्म होगी. सो 1 माइनस टी. अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, हमें एडजस्ट करने के लिए नेक्स्ट टर्म में देखो कैसे करेंगे. 1 माइनस टी, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 2 माइनस टी, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी रेज़ टू माइनस. अब ये 2 माइनस टी लेने की वजह से यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाल ली, तो ये हो गया हमारा +1. सो 1/t 2 माइनस
टी हो गया। अब इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन सबको पता है, हमने इसके पहले भी बहुत बार यूज किया है, बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस टी क्या होगा, अब सभी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आएंगी, यहाँ पे निगेटिव है तो 1 प्लस टी प्लस एक एक टी का पावर बढ़ता जाएगा, प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इट गोज टू इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे हम 1/t इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। सो देखो अब क्या होगा, एक बार हम 2 माइनस टी से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, सभी जगह अगर 2 से करेंगे तो इसके बाद माइनस टी इंटू दैट टर्म करेंगे तो देखो क्या चेंजेस होगा। सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2t स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2t क्यूब देन प्लस 2t रेज टू द पावर 4। आगे देखो क्या हो जाएगा, अब माइनस आ जाएगा, माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी हो जाएगा, उसके बाद माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब हो जाएगा, देन माइनस टी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, देन माइनस टी रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे हमारी सीरीज। उसके बाद भी अगेन इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, इसके बाद भी क्योंकि 2 और एक टर्म को मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सो 1/t, यहाँ पे 2 हम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद 2t है यहाँ पे प्लस 2t और यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया हमारा प्लस t हो जाएगा, 2t एंड माइनस टी हो गया प्लस टी, 2t स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2t क्यूब माइनस टी क्यूब तो ये हो जाएगा प्लस टी क्यूब, उसके बाद 2t रेज टू द पावर 4 माइनस टी रेज टू द पावर 4 तो ये हो जाएगा हमारा प्लस टी रेज टू द पावर 4। आगे की भी टर्म हमें मिलेंगी बट इट गोज टू इन्फिनिटी, तो यार यहाँ पे हम कर देते प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे हमारा टी जो है, जो कुछ भी जहाँ जहाँ भी टी है हम उसको रिप्लेस कर देंगे एज अ z+2 से। तो देखो क्या चेंजेस होंगे, एक बार अच्छे से देख लो ये पूरा। वी कंटिन्यू दैट प्रॉब्लम ऑन दैट साइड। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू, अब हम t को रिप्लेस कर देंगे, हमने t के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या रखी थी, सब्स्टिट्यूशन यस क्या रखी थी हमने, z+2 इज इक्वल्स टू t रखा था, तो जहाँ जहाँ भी t है वहाँ रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज z+2 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2 प्लस z+2 देन प्लस z+2 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी को जाएगा। और इफ यू ऑब्जर्व दैट टर्म यू ट्रांसफर टू दैट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को चली जाएंगी तो टर्म z+2 रेज टू -1, यहाँ पे हमारी टर्म 2 प्लस z+2 देन प्लस z+2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या ली थी हमने, दैट इज 0 इज लेस देन मॉड t इज लेस देन 1। अब t की जगह हमारी यहाँ पे z+2 की टर्म, सो यहाँ पे कंडीशन होगी 0 इज लेस देन मॉड ऑफ z+2 इज लेस देन 1, क्योंकि अगर ये ग्रेटर रहेगा 0 से तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, दैट इज 1/z+2। सो दैट इज द एक्सपेंशन, सो ऑब्जर्व दैट। इसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लगे तो ये हमने सपोज यहाँ पे ये टर्म अगर 1/z+2 से मल्टीप्लाई कर दी तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/z+2 आ जाएगा, यहाँ पे बोथ गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे z+2। अगर नेक्स्ट टर्म देखेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो एक आ गया। नेक्स्ट है टी क्यूब, यहाँ पे सपोज क्या रहेंगे नेक्स्ट टर्म z+2 क्यूब प्लस है सो ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज अ z+2 स्क्वायर एंड मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों पावर आ जाएंगे z+2 के, दैट इज 2 इंटू
z plus 2 raised to minus 1 plus 1 plus z plus 2 and so on. सो सीरीज कैसे होंगी हमारी, यहाँ पे अगर z प्लस 2 के निगेटिव पावर भी आ रहे एज वेल एज पॉजिटिव पावर भी आ रहे, कंडीशन ये है, सो ऑब्वियसली इट इज अ लॉरेंट सीरीज. जब वहाँ पे पावर दोनों आएंगे निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑफ अ गिवन टर्म और ब्रैकेट, देन दैट इज अ लॉरेंट सीरीज, विच इज अ लॉरेंट सीरीज. सो आई विल राइट हियर विच इज लॉरेंट सीरीज. सो दैट इज अगेन इजी मेथड. यहाँ पे सीरीज निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, जो फंक्शन है जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालनी है, जैसे हमने z इक्वल्स टू -2 के लिए निकाल ली थी, दैट मीन सीरीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ z प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ z प्लस 2. तो हमने z प्लस 2 के लिए सब्सटीट्यूशन रखा वहाँ पे, z प्लस 2 इज इक्वल्स टू t. सो सभी जो z की टर्म्स थे वो t के फॉर्म में रिप्लेस हो गई, उसको सिंप्लीफाई कर दिया एंड देन वी टेक इट एक्सपेंशन एंड फाइनली हमने t को अगेन रिप्लेस कर दिया z से. तो ये हो गई हमारी सीरीज, जहाँ पे z प्लस 2 के दोनों पावर है, पॉजिटिव भी है, ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, एक भी अगर निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इट इज अ लॉरेंट सीरीज. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो ऑब्जर्व दैट. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं हम. यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिखा था ऑलरेडी, एक्सपांड 1/z² माइनस 3z प्लस 2. अब ये फंक्शन हमें एक्सपांड करना है, बट यहाँ पे अबाउट द पॉइंट नहीं दिया है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम का रीजन था. यहाँ पे हमें अबाउट द रीजन दिया है, अबाउट द रीजन फॉर अ गिवन रीजन और फॉर अ, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें सीरीज निकालनी है. फर्स्ट रीजन है mod z इज लेस देन 1, सेकंड इज 1 इज लेस देन mod z इज लेस देन 2, mod z is greater than 2 and then 0 is less than mod of z minus 1 is less than 1. तो ये फंक्शन है. सो सबसे पहले तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे सेपरेट कर दिया, 1/z² माइनस 3z प्लस 2 के ये फैक्टर रहेंगे, z माइनस 2 इंटू z माइनस 1 ऐसे फॉर्म में मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया. देन आई हैव सेपरेटेड बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सेपरेट कैसे करना है ये सभी को पता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि आप लोगों को आएगा नहीं. यहाँ पे ये दोनों भी लीनियर फैक्टर है, सो ऑब्वियसली यू कैन सेपरेट दैट टर्म. तो सेपरेट करने के बाद ये टर्म ऐसे आ गई, सो दैट इज अवर एफ ऑफ जेड. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z माइनस 2 माइनस 1/z माइनस 1. अब रहा सवाल रीजन का, इस रीजन के लिए हमें एक्सपांड करना है फॉर अ गिवन रीजन. तो सबसे पहला देखते हैं फॉर अ रीजन, पहली कंडीशन क्या है हमारी, दैट इज अ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1. अब रीजन हमेशा ध्यान में रखना कैसा रहता है, रीजन पे डिपेंड रहता है कि हाउ वी कैन एडजस्ट दैट एफ ऑफ जेड. मॉड जेड इज लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स 0 इज लेस देन 1/mod ऑफ जेड. ओके, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन दैट मॉड जेड. सो दैट इम्प्लाइज 1 अगर ग्रेटर हो रहा है इसका मतलब है 1 माइनस जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. अगर 1 ग्रेटर है मॉड जेड से, सो व्हाट वी राइट, वी कैन राइट दैट इम्प्लाइज जेड इज लेस देन ऑल्सो 1. अगर जेड 1 से लेस हो रहा है, मॉड जेड लेस हो रहा है 1 से, सो ऑब्वियसली जेड इज लेस देन 1. अब जेड इज लेस देन 1 हो रहा है, सो 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है हमारा z माइनस 1, बट फ्रॉम दैट गिवन रीजन हमारी कंडीशन आ रही 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0. तो हमें z माइनस 1 को एडजस्ट करना पड़ेगा 1 माइनस जेड के फॉर्म में. अब वो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 1 माइनस जेड. अब फॉर द सेकंड टर्म के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सेम कंडीशन. अब यहाँ पे है मॉड जेड इज लेस देन 1. अगर मॉड जेड 1 से लेस है तो ऑब्वियसली मॉड जेड इज ऑल्सो लेस देन 2. अगर वो 1 से लेस है, सो ऑब्वियसली इट इज लेस देन 2, इट इज लेस देन 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मॉड जेड इज लेस देन 2 ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे है z माइनस 2, तो डिनोमिनेटर देखो कैसे एडजस्ट करेंगे, दैट इम्प्लाइज z इज लेस देन 2. सो अगर z 2 से लेस है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0. 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 0. तो हमें ये टर्म भी हमें कैसे एडजस्ट करने हैं, 2 माइनस जेड के फॉर्म में. एक बार अच्छे से देख लो उसे.
डिनोमिनेटर एडजस्ट करते हैं तो वो ये हमने लिखा तो है पर इट्स नॉट अ करेक्ट। हमें जब भी डिनोमिनेटर एडजस्ट करना है वो 1 माइनस के फॉर्म में करना है, 1 माइनस, क्योंकि उसका बाद में बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पॉसिबल रहता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। मॉड जेड इज लेस देन 1, सो ऑब्वियसली इट इज मॉड जेड इज लेस देन 2। ओके, मॉड जेड इज लेस देन 2, सो दैट इंप्लाइज मॉड ऑफ जेड बाय 2 इज लेस देन 1। मतलब ये टर्म 1 से कौन सी टर्म यहाँ पे लेस हो रही है फ्रॉम द गिवन कंडीशन, दैट मीन्स 1 is greater than mod z by 2. अब 1 is greater than mod z by 2, so obviously that implies z by 2 is also less than 1. So इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 minus z by 2 is greater than 0। मतलब इस डिनोमिनेटर का कैसे एडजस्ट करेंगे हम z minus 2 को। देखो कंडीशन कैसे ली, हमारे पास कंडीशन थी mod z is less than 1। सो अगर mod z less than 1 है तो ऑब्वियसली mod z is less than 2। ये क्या इंप्लाई करता है कि mod z लेस देन 2। अब mod z अगर लेस देन 2 है तो हमें देखना है कि फ्रॉम दैट कंडीशन हाउ वी कैन राइट दैट कंडीशन फॉर अ 1 ग्रेटर। अब यहाँ से इस कंडीशन में हमें देखना है कि 1 किससे ग्रेटर होता है। अब 1 ग्रेटर दिखाने के लिए 2 इस साइड हमें लेना पड़ेगा, सो दैट mod z by 2 हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। सो mod z by 2 इज लेस देन 1। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 इज ग्रेटर देन दैट टर्म। सो अगर 1 इस टर्म से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली mod z by 2 इज लेस देन 1। सो 1 इज ग्रेटर देन दैट टर्म, सो 1 माइनस z by 2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब इस डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा। -2 लेंगे तभी यहाँ पे 1 आएगा और ये माइनस z by 2 हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो, कंडीशन थी हमारी mod z is less than 1। सो फ्रॉम दैट कंडीशन हाउ वी राइट, ऑब्वियसली z is less than 1। अब अगर z 1 से लेस है, सो ऑब्वियसली वी कैन राइट दैट डिनोमिनेटर एज 1 माइनस z, दैट 1 माइनस z इज ग्रेटर देन 0। एज z इज लेस देन 1, सो 1 माइनस z इज ग्रेटर देन 0। z अगर 1 से लेस है तो 1 माइनस z इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद z अगर 1 से लेस है तो अगर 1 माइनस z करेंगे तो वो भी 0, वो ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। उसके बाद mod z इज लेस देन 1, सो ऑब्वियसली mod z इज लेस देन 2, सो दैट 2 कम्स ऑन दैट साइड, सो mod z by 2 इज लेस देन 1। अब 1 से ये दोनों टर्म लेस है, mod z by 2, सो ऑब्वियसली z by 2 इज लेस देन 1। सो अगर 1 ग्रेटर है दिस टर्म से तो 1 माइनस z by 2 करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0। सो इन दिस वे वी एडजस्ट दैट डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, f ऑफ z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1, यहाँ पे हमें लिखना है 1 माइनस z by 2 के फॉर्म में, तो -2 बाहर ले लेंगे। -2 अगर यहाँ पे ले लिया हमें तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1 माइनस, अब -2 निकालने की वजह से यहाँ पे माइनस और ये हो गया हमारा z by 2। यहाँ पे हमें लिखना है 1 माइनस z, 1 माइनस z लिखने के लिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 ये हो गया 1 माइनस z। ओके, एक बार अच्छे से देख लो। अब ये आ जाएगा -1/2, ये हो गया हमारा 1/1 माइनस z by 2, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 1/1 माइनस z। ओके, अब दोनों टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, सो -1/2, 1 माइनस z by 2 रेज टू -1 प्लस 1 माइनस z रेज टू -1। अब आगे हमें पता है कि हमें लेना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो 1 माइनस -1/2, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लेंगे तो x की जगह z by 2 है, सो 1 प्लस z by 2, देन z स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, देन z क्यूब बाय 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और आगे यहाँ पे होगा प्लस 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ दैट फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन mod z इज लेस देन 1। उस रीजन के हिसाब से फिर हमें फंक्शन एडजस्ट करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू टेक इट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब बाकी के रीजन के लिए आप लोग देखो कैसे आएगा, बाय यूजिंग दैट मेथड। पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे mod z इज लेस देन 1 था, यहाँ पे mod z इज ग्रेटर देन 1 है, एंड देन mod z इज लेस देन 2 है। सेकंड mod z इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन। सो आगे के जो तीनों भी कंडीशन है वो आपको सॉल्व करके देखना है, एक बार ये अच्छे से देख लो।
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कंडीशंस रहती है, फ्रॉम दैट कंडीशंस यू हैव टू टेक 1 माइनस द टर्म विच इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस सम टर्म्स विच इज ग्रेटर देन 0. अब इस कंडीशन से हमने ये निकाला कि z इज लेस देन 1, और फिर आगे की टर्म हमने कंडीशन क्या ले सकती कि 1 माइनस z इज ग्रेटर देन 0. तो 1 माइनस दैट टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द गिवन कंडीशन. सेकंड, मॉड z इज लेस देन 2 था, बट हमें 1 माइनस के फॉर्म में चाहिए था, सो हमने 2 इधर ले लिया. सो मॉड z बाय 2 इज लेस देन 1, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन दैट टर्म. सो ऑब्वियसली 1 माइनस z बाय 2 इज ग्रेटर देन 0. हमें जो कुछ भी हमारा डिनोमीटर है वो 1 माइनस या 1 प्लस के फॉर्म में एडजस्ट करना है फ्रॉम दी गिवन कंडीशन. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है. सो I will stop here. That is for your homework, remaining condition. So, thank you very much.